So last topic of this chapter is rotating bodies. That article is number 218, and after that I will start the distribution function. So rotating bodies का concept जो है ये कहाँ से आया? Because we know that our system contains translational and rotational motion, जो कि आर्टिकल नंबर 2 या 3 कर रखा है हमने कि सिस्टम में जो है पार्टिकल्स ओनली 2 मोशंस ही कैरी करेंगे अपने साथ, या तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा या फिर रोटेशनल. सो ट्रांसलेशनल मोशन जो है इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट किया हुआ है और हम यहाँ पे लेकर चलेंगे सिर्फ रोटेशनल मोशन. बिकॉज ट्रांसलेशनल मोशन जो है इसकी कोई स्पेशल इम्पोर्टेंस नहीं है और इसका बॉडीज पे कोई इफेक्ट नहीं है देखने को ज़्यादा ट्रांसलेशनल मोशन का. सो दैट इज वाई वी आर नेग्लेक्टिंग दिस ट्रांसलेशनल मोशन and we will carry here only rotational motion, and this rotational motion is very interesting that it contains the system in fixed axis, that a system will carry its energy in rotational motion. In rotational motion, system will carry energy in fixed coordinates and another that is with this rotational coordinates. So दो तरह की एनर्जी यहाँ पे लिखेंगे हम, that is it's with fixed axis और with rotational axis. So example अगर हमें consider करो, that is let us consider a body in a uniform rotation around a fixed axis with angular velocity omega. सो एग्जाम्पल अगर मैं कंसीडर करूँ यहाँ पे, तो एक फैन कंसीडर करूँ मैं. दैट फैन कैरी यूनिफॉर्म मोशन ओके, और बिकॉज ये यूनिफॉर्म मोशन कैरी करेगा और इसकी जो एक्सिस है दैट इज फिक्स्ड. एक्सिस इसकी फिक्स है, बस मोशन किसका है, इसका है यूनिफॉर्म मोशन. सो बिकॉज फिक्स्ड एक्सिस है तो इसका एनर्जी जो होगा दैट इज इन फिक्स पोजीशन पी क्यू, because p is momentum and q is coordinate system, as we know earlier, that this energy will be the energy in fixed coordinate. Fixed coordinate system, and E dash PQ will the energy of rotating body, या फिर कह लें रोटेशनल सिस्टम के केस में. सो एक रिलेशन अगर मैं सेटअप करूं फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम की एनर्जी का और रोटेशनल सिस्टम एनर्जी का, एक रिलेशन अगर सेटअप करूं तो ये रिलेशन इस तरह से आएगा, दैट इज E डैश पी क्यू इज इक्वल्स टू E ऑफ पी क्यू माइनस ऑफ ओमेगा m of pq. Fine. So this omega is nothing but the angular velocity
and m is angular momentum. Okay, capital M is angular momentum. So यहाँ से अगर जो आपका एनर्जी का कोऑर्डिनेट है अलग अलग पोजीशन के लिए, दैट इज फिक्स और रोटेशन के लिए, और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम जो कि हमने इस इक्वेशन में फिक्स कर दिए हैं सारे, तो यहाँ से मैं एंगुलर मोमेंटम जो है वो निकाल लूँ, तो ये रिलेशन मेरे पास कैसे आएगा, दैट विल बी ई डैश over, if I differentiate this equation 1 with this number, then it will give you minus of m p comma q, that is also p comma q. Okay, so this is a angular momentum in a rotating system. Okay, angular momentum of rotating system, this one. फिक्स की बात अभी नहीं हो रही है. So if I average this energy, this is for single particle. If I average, then E of energy, that is E dash, will nothing but E dash of PQ. या फिर अगर मैं ऐसे लिखूं, इसका एवरेज जो होगा that is equal to E dash. तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे E dash लिख रही हूँ, E dash, तो इस E dash का मीनिंग क्या है कि हमने एवरेज कर रखा है. ओके, विच इज इक्वल्स टू सिमिलर एवरेज, इसका क्या आएगा, दैट इज दिस एवरेज इज कैपिटल M ओनली. ओके, बाय एवरेजिंग दिस. By averaging equation 2. So this is overall averaging of thermodynamic energy and angular momentum of the body in a rotating system. So if I want to calculate the energy, then I want to calculate the differential equation for E. और डिफरेंशियल इक्वेशन एक तो हम जानते थे, दैट इज टी ई इज इक्वल टू टी डी एस माइनस ऑफ टी डी वी. ओके, अब यही इक्वेशन जो है मुझे रोटेटिंग बॉडीज के केस में लिखना है. तो ये इक्वेशन कैसे आएगा, दैट इज ई डैश, डैश मीन्स रोटेशन. ओके, यहाँ लिखा है डैश मीन्स रोटेटिंग सिस्टम एंड सिंपल ई ऑफ पी क्यू मीन्स फिक्स्ड system energy. This is energy. Okay, then it will be TdS minus of capital M and d omega. This P is replaced by capital M and volume is by this number. This is for similarly free energy. Expression for free energy. Expression for free energy, that is, what is free energy? F dash is equal to E minus Ts. E minus Ts. So therefore, free energy will be E dF dash minus S dt minus M d omega. Equation 5. So equation 4 and 5 are nothing but energies, differential equation for energy and differential equation for free energy.
So if we see equation 4 and 5, we can simply calculate m. तो m यहाँ से कैसे आएगा? अगर मैं dE का डिफरेंशियल ले लूँ इसके साथ तो कैपिटल M मिलेगा मुझे, और सिंपली यहाँ पे भी क्या होगा, अगर इसका डिफरेंशियल जो है विद रिस्पेक्ट इसके ले लिया जाए f की, तो मुझे क्या मिलेगा? m. So now again by averaging of this equation 1 का एवरेज क्या होगा? That is E dash is equals to E minus of m omega, because equation 1 क्या है? That is E of PQ is equals to E PQ minus gamma m PQ. तो एवरेज लेना है, एवरेज का क्या करेंगे हम? इसका एवरेज और m का एवरेज. तो क्या आएगा? सिंपली E डैश को एवरेज सिंपली E डैश लिखा हमने, और इसको E लिखा, और इसको क्या लिखा? m. फाइन. सो नाउ these are the again energy of rotating bodies. रोटेशन में है जब सिस्टम, ओके, रोटेशन में है. इक्वेशन 4 and 5 also फ्री एनर्जीज एंड एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और एनर्जी किसके डिफरेंशियल हैं? ये अगेन रोटेटिंग बॉडीज के, क्योंकि डैश लगा है. ठीक है जी. यहाँ पे कैपिटल M एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया इन टर्म्स ऑफ किसके? हमारी रोटेटिंग बॉडीज के. ओके, इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल एनर्जी सिस्टम के. नाउ फिक्स एनर्जी के लिए भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, फिक्स कोऑर्डिनेट के लिए. तो फिक्स कोऑर्डिनेट के लिए कि एनर्जी जो निकल के आएगा वो कैसे आएगा? बिकॉज E is this value E dash, this is for rotating bodies. Now fix के लिए यहाँ से निकालेंगे, that is E is equals to यहाँ से E dash plus capital M omega, that is for fixed coordinate energy. फिक्स कोऑर्डिनेट एनर्जी है. अब इसका डिफरेंशियल ले लीजिए, D is equal to DE dash plus M D omega plus omega D. Fine. Number 6. Now DE dash is what? Equation number 4. So 4 को यूज करना है यहाँ पे. DE, बिकॉज हम क्या निकालने जा रहे हैं यहाँ पे? फ्री एनर्जी, डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर फिक्स्ड कोऑर्डिनेट्स सिस्टम. क्योंकि रोटेटिंग के लिए हमने निकाल रखा है, फिक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम. So DE dash is nothing but TDS minus of M D omega plus M D omega plus omega dm. कैंसल आउट, और एनर्जी आपकी यहाँ पे निकल के आ रही है, दैट इज दिस वैल्यू. क्वेश्चन 7. अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारा जो एनर्जी है वो टोटल आपका क्या है? सिंपल आ रहा है, यहाँ पे कोई डैश नहीं है. ओके, so this is for fixed coordinate system. Again फ्री एनर्जी भी निकालना है हमें. तो फ्री एनर्जी का जो रिलेशन आएगा वैसे ही हमने क्या करना है? फ्री एनर्जी के लिए चलना है, दैट इज फ्री एनर्जी व्हाट? F dash
is equals to E minus TS, E dash minus TS. ओके, सो अगेन हमने एक्सप्रेशन जो है प्रीवियस यूज कर लेने हैं और वैल्यूज पुट करके ई डैश की वैल्यूज पुट करके हमारे पास जो रिलेशन निकलेगा एफ का, दैट विल बी डी एफ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ डी टी प्लस ओमेगा डी एम, दैट नंबर 8. ओके, सो 6, 7 and 8 इक्वेशन जो है 7 and 8 they are for fixed coordinate system and similarly जो previous relation निकाली हमने that is for rotating system ds minus of m d omega और इसका जो फ्री एनर्जी निकला था माइनस एस डी टी माइनस एम डी ओमेगा. तो फर्क क्या है इसमें, इक्वेशन नंबर ये 5 था और इक्वेशन 6 था, तो इनमें फर्क क्या है, यहाँ पे आपका जो क्वांटिटी है यहाँ चेंज हुआ, जस्ट यहाँ पॉजिटिव साइन था, नेगेटिव साइन है यहाँ. चेंज कहाँ है, जस्ट यहाँ पे. और वेरी कौन सी चीज कर रही है यहाँ, अगर हम यहाँ चेक करें तो आपका यहाँ डीएम है और यहाँ क्या है, ओमेगा है, ओमेगा है. सो फिक्स्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपका क्वांटिटी है दैट इज दिस क्वांटिटी इज अ वेरिएबल. ओके, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, रिवर्स है इसका, या फिर इसको कह लें कि आपके रोटेटिंग बॉडीज में जो क्वांटिटी थी वो वेरी कर रही थी एक, तो वही क्वांटिटी जो है दूसरे के केस में क्या है, फिक्स्ड है या फिर इंडिपेंडेंट कह लीजिए. ओके, सो अगेन यहाँ हमने कैलकुलेट किया डीई के केस में, यहाँ पे कैपिटल एम निकल के आया था हमारे पास, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, दिस वैल्यू इज ओमेगा. सो ओमेगा क्या होगा यहाँ, दैट इज डी एफ ओवर डी एम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू अगेन हियर डी ओवर डी एम at constant entropy is nothing but this omega. Fine. So ये तो थी आपकी रोटेटिंग बॉडी का केस लिया हमने, और रोटेटिंग बॉडीज में आपकी जो एनर्जी है और फ्री एनर्जी है उनको कैसे लिखा जाना है. तो यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर किया हमने, और यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन है तो कोऑर्डिनेट आपके फिक्स और रोटेटिंग बनेंगे. तो यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के केस में दो तरह की फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगी, टू फोर्सेस विल एग्जिस्ट. कौन कौन सी, एक तो आएगी आपकी सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेशन के केस में. ओके, यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन. और सेकंड इज कॉर्लिस फोर्स. नाउ ये फोर्स जो है ये आपकी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑन साइज. दिस इज प्रोपोर्शनल टू साइज.
ओके, सो ये इंडिपेंडेंट है तो इसको नेग्लेक्ट किया, बिकॉज हमें साइज पे भी फोकस करना है, तो साइज के लिए हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसीडर किया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम क्या करेंगे, जो आर्टिकल प्रीवियस किया हमने, वहां पे हमने देखा कि म्यू नॉट ई टी प्लस u ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड क्या था आपका, कांस्टेंट था आर्टिकल, प्रीवियस आर्टिकल, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। तो सिमिलरली हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इसको एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करना है, और इस एक्सटर्नल फोर्स में रोटेटिंग बॉडीज का इक्विलिब्रिया कैसा होगा। ओके, एक्सटर्नल फोर्स में रोटेटिंग बॉडीज का इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए किस तरह का इक्वेशन लिखा जाना है, दैट इक्वेशन विल बी म्यू नॉट पी टी माइनस ऑफ 1/2 m omega square r square is equals to constant. This is your centrifugal energy. Okay, अगेन मैं ये चीज आपको दोबारा से बता दूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स में प्रीवियस आर्टिकल में हमने देखा कि एक बॉडी जो है जो इक्विलिब्रियम पे है और जिसको एक्सटर्नल फोर्स में रखा है, तो उसका एक्सप्रेशन इस तरह से आता था। तो सिमिलर हमने देखना है कि दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, व्हाट इज द इफेक्ट in the presence of external force, what is the effect on rotating bodies, that body is in exists in equilibrium। तो इसके लिए इक्वेशन जो है वो इस तरह से सेटअप होगा। फाइन, सो इन टोटल अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूं, बिकॉज दिस टर्म इज नथिंग बट केमिकल पोटेंशियल ऑफ द बॉडी एट रेस्ट। Okay. M is the mass, R is the radii. Okay, radii कौन सा, ये एक्सिस आपकी फिक्स है, और ये वाला रेडियाई होगा आपका, दैट इज R। ओके, और दिस वैल्यू इज एंगुलर वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ ये इसका मूवमेंट हो रहा है। सो टोटल एनर्जी अगर मैं लिखूं यहाँ पे, दैट टोटल एनर्जी of our rotating body का टोटल एनर्जी कितना होगा, दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी प्लस इट्स काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m square I, that is internal energy plus kinetic energy of rotating body। सो ये एक्सप्रेशन जो है सिंपल जैसा है, इसमें क्या है, अब जस्ट हम देख रहे हैं कि रोटेटिंग बॉडीज जो है, रोटेशन में है अगर कोई बॉडी, तो उसका जो इक्वेशंस लिखना है हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस तरह का होगा, तो उसको किस में लिखना है हमने, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स में। और एंगुलर मोमेंटा और एंगुलर वेलोसिटी जो है हम फर्दर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन this number, this will give you angular velocity, and further angular velocity के बाद अगर यही फोर्स जो है, अगर इसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में रखें, इस इक्वेशन को
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में देखने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल फोर्स में या एक्सटर्नल एनर्जी में, एक्सटर्नल फील्ड में, तो जो रोटेटिंग बॉडीज का इक्विलिब्रिया होगा उसको किस तरह से लिखा जाना है। दैट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडीज विल बी दिस वैल्यू।